What is graphology means to the people as a common person? Do you personally believe in any of the astrology, numerology and anything आपने किसी पर्वत का नाम किसी फीमेल के नाम से कभी सुना है? happening in the DNA, that is in the blood? वो blood sample से किया जाता है. You are saying कि the same thing you can check through graphology, through their 100%. handwriting. Yeah, very easy. Your confidence is giving me a puzzle. I mean, What are the things that a professional can take a help from you through the use of graphology or graphotherapy? okay. So there are financial things also. Hi, this is Indraneel and welcome to the Spotlight Beyond Profession. बचपन से हमारे टीचर्स ने और हमारे पेरेंट्स ने हमारे हैंडराइटिंग सुधारने के लिए कितनी भी बार हमें बोला होगा हमें मालूम नहीं है. बट योर हैंडराइटिंग कैन डिफाइन योर हेल्थ. योर हैंडराइटिंग कैन डिफाइन योर पर्सनैलिटी एज वेल एज योर प्रोफेशन. Can you even believe that? And the process is known as graphology. Today in the podcast, we are having Monica Budhulia. She is a graphologist and she is describing that how your handwriting and even your signature can define your health, your professional life, as well as your personal life. So please watch this podcast till the end, and before that, please subscribe this channel, The Spotlight Beyond Profession, so that you can have all the updates from our end. And also subscribe our TSBP News, where we cover business news Monday to Friday. So to understand more and deep into graphology, please watch this podcast till the end. First of all, thank you very much for coming to our show, The Spotlight Beyond Profession. Thank you so much, Indranil, for calling me here. And I must thank you because you kept that time for your busy schedule. And today in the podcast, before I deep dive into it, I just want to understand first that what do you mean and what is graphology means to the people as a common person? There are times when people are having this question to me. Graphology means what? Graphic designer? Yes. So let me clear this myth. No. Graphology is a different thing. Graphic designer is a completely different thing. True. So graphology is, if we talk about graphology, so graphology is whatever we write on a paper. It may be a single dot, a line, a alphabet, or any kind of drawing. These all things can be analyzed. To analyze these all, we use a science, and that science is called graphology. So what are the things which should be comes under consideration to analyze something on the writing or anything in that category? So there are many parameters. So first we take the sample of your handwriting and the signature. So first is the basic is the handwriting. Yes, handwriting and the signature both. Okay. So now we take a subject. Yeah. We take a subject of around 20 to 30 years in between the age of a person, because he or she must have created a certain kind of a signature of their own for the Correct. banking purpose or for the schooling or college purposes. Yes. At the same time, he or she had developed certain style of handwriting as well. Correct. So that is the inheritant. Correct. So without thinking much, without knowing graphology, he or she had developed a handwriting pattern and a signature or a sign. Now what? So see, there are two type of mind, subconscious mind and conscious mind. Okay. ठीक है. So the conscious mind is 20%. Okay. The subconscious mind is 80%. So Interesting. by the handwriting, we read your subconscious mind and we work upon that. अभी आप जो लिख रहे हैं, that is your brain writing. Yes. But you feel that you are writing. So the writing is आपके brain का X-ray है. Okay. So how it works, I tell you. Yes, please. Our brain gives impulse to our hand. Hence, with the help of pen, imprinted on a paper. The imprint released by the pen can be interpreted, Okay. and that is called graphology. So what are the basic aspect of it? In like which sense you ask? मीन्स कोई एक हैंडराइटिंग है किसी का भी, तो एक हैंडराइटिंग से आप क्या क्या चीज़ें समझ सकते हो उसके बारे में? उसके सारे ट्रेट्स समझे जा सकते हैं. लाइक उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस, उसका डिसीजन मेकिंग सेंस, उसका
एनालाइज कर पाना चीज़ों को जल्दी. देर आर टाइम्स जब भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके रिलेशन इश्यूज़ हैं, वाई दे आर दैट. सी देर आर टाइम्स व्हेन यू सीइंग द हैंड राइटिंग, राइट. आज मैं आपकी भी हैंड राइटिंग देखूंगी तो मैं आपको ये बोलूँगी आप ये हो, राइट. ओके. ये होना नहीं होना इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो तो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, बट वी वर्क अपॉन आप ये क्यों हो. ओके. ओके. So when we start working upon that, then it leads to the healing process. ओके. नाउ आई एम ब्रेकिंग इट डाउन. सिग्नेचर एक अलग चीज़ें हैं और Correct. हैंड राइटिंग एक अलग चीज़ है. Correct. अगर हैंड राइटिंग के बारे में मैं अगर आपसे बात करूँ तो यू आइडेंटिफाइड मल्टीपल ऑफ द थिंग्स. मेजरली आप टोटल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल कि वो इंडिविजुअल कैसा है, डिसीजन कैसे लेते हैं, ये सारे आपको जानकारी तो मिल गया उसके हैंड राइटिंग देख के. अब अगर किसी चीज़ के बारे में अगर बंदा लैक कर रहा है तो डू यू हैव एनी प्रोसेस टू इम्प्रूव दैट एज वेल? Yes, होती है ग्राफोथेरेपी. ओके. सो फर्स्ट to identify the issue, that is the graphology. Yes. Once you identified the issue, to There are rectify parameters something. definitely by which we can understand कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या है. That can be anything. किसी के फैमिली में रिलेशन के इश्यूज़ होते हैं, किसी के फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, बच्चों के साथ भी इश्यूज़ होते हैं. बच्चा जिद करता है, मानता नहीं है, ईटिंग हैबिट्स नहीं सही हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स उनके सही नहीं है. देर आर मेनी एस्पेक्ट्स. हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, किसी को माइग्रेन है, थायराइड है, किडनी स्टोन, देन लीवर इश्यूज़ हैं, बैक पेन, नी पेन, शुगर. सो देर आर मेनी डिजीज़ेज यू नो पीपल आर डीलिंग नाउ डेज. तो वो सारी चीज़ें हम ग्राफोलॉजी मतलब हैंड राइटिंग के थ्रू जान सकते हैं और उसको रेमेडीज़ दे के हम ठीक भी कर सकते हैं. फिर डॉक्टर का क्या करें? डॉक्टर्स भी मुझसे थेरेपी लेते हैं. That is interesting. Yes. So now if you identified that, then you call it as a graphotherapy. Correct. So graphotherapy का कुछ steps जो होते हैं, क्या हाँ. आप मुझे वो बता पाएंगे? So that we can all understand कि what are the process we should follow. सो फर्स्ट आई टेक अ सैम्पल. जब भी मैं आपका हैंड राइटिंग का सैम्पल लूँगी इन अ पर्टिकुलर वे, द वे आई वांट टू एनालाइज. हमारा एक सर्टेन वे होता है. Okay. फिर जब आप मुझे उस सैम्पल को देंगे तो मैं उसको एनालाइज करूँगी. एनालाइज करने में इट टेक्स टाइम, अ डे और टू. फिर मैं आपका एक पैरामीटर रिपोर्ट बनाऊँगी. अभी वो पैरामीटर रिपोर्ट बनाने के लिए आई टेक माई स्टडीज़ विद मी. उसमें प्रेशर चेक किया जाता है, उसमें स्पेस चेक किया जाता है कि लाइन के बीच में कितना स्पेस है, वर्ड्स के बीच में. एवरी सिंगल इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट हैज़ अ ट्रेट. इवन अ डॉट, जो आप आई देखते हैं, आई के ऊपर एक छोटा सा डॉट होता है, Yes. दैट ऑल्सो सेज सम ट्रेट्स अबाउट द पर्सन. Okay. सो दैट वे इट वर्क्स. लाइक मार्जिन होते हैं, प्रेशर होता है, प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. देन स्लांट चेक किया जाता है कि अपवर्ड है, स्ट्रेट है, डाउनवर्ड है. तो वो सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं. एंड आफ्टर दैट आई विल मेक अ पैरामीटर रिपोर्ट. Okay. So in that report, I am giving counseling. So counseling session for a person जिसका भी ग्राफोलॉजी का मैं रिपोर्ट तैयार करती हूँ. उसके साथ साथ मैं उसको थेरेपीज़ भी बताती हूँ. तो फिर उसे वो थेरेपीज़ रेगुलर बेसिस पे करनी होती हैं. तो कोई अगर आपके पास पहली बार आया, यू हैड डन दैट ग्राफोलॉजी, सो आइडेंटिफाई करने से लेके थेरेपी तक का जो समय है वो कितना समय का होता है? ड्यूरेशन क्या होता है? आइडेंटिफाई करने से लेके उसको काउंसलिंग देने तक का समय हार्डली अ वीक. अ वीक्स टाइम. ये जो थेरेपी अभी जो शुरू होगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी क्रिटिकल है या कितना क्या इम्प्रूवमेंट Correct. करना है या कितना Correct. भी, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता होगा. Correct. हाँ. एंड नाउ हाउ मेनी सेशंस नॉर्मली और यूजुअली अ पर्सन नीड्स टू हैव सर्टेन रेक्टिफिकेशन? So I tell you, there are times जब भी it again depends upon the client. जैसे मैंने किसी को अपनी काउंसलिंग दे दी, मैंने उस इंसान को अपना थेरेपी भी अच्छे से समझा दिया है. उसने स्टार्ट कर दिया है. ही इज़ Okay. कंसिस्टेंट, ही और शी इज़ कंसिस्टेंट. नाउ दे आर डूइंग इट वेरी नाइसली. सो दे कैन जस्ट कम, show it to me. If there is any correction required, I'll suggest. Otherwise, there is only one session which I need to give to that person, and that's it. मतलब आप उनको एक सेशन लेंगे, उनको समझा देंगे, फिर उनके पास वो एज ए होमवर्क चला जाएगा. Correct. फिर वो होमवर्क करके आपको दिखाने के लिए आएंगे, आप चेक करेंगे, सही है तो वापस चले जाओ, दूसरा करके आओ. Correct. और नहीं सही है तो देन यू गिव सर्टेन Correct. other instructions as Correct. well. And also in my profession, this is what my my professor has taught me this thing.
जब मैंने उसको वो चीज़ बता दी है सामने वाले को कि आपको ये थेरेपी करना है, आपको ये ऐसे चेंज करना है, बिकॉज यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, राइट? सो यू हैव टू शो योर एफर्ट्स एज वेल. ट्रू. नहीं, कोई अगर आपके पास आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ही और शी मस्ट बी सीरियस, देन ओनली ही और हाँ, शी नहीं, विल देर आर बी टाइम्स व्हेन इट कम्स टू, सी आई टेल यू, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप सारे टेस्ट कराते हो, आप दवाई ले लेते हो, डॉक्टर दवाई खिलाने आपको नहीं आएगा, हाँ, ट्रू. करेक्ट? दैट यू हैव टू टेक. यस. अगेन आपका कोर्स ख़त्म हो गया, लाइक यू हैव लाइक डन इट फॉर 2 months 3 months, फिनिश, देन अगेन डॉक्टर विल नॉट गिव यू अ कॉल. Yes. You have to go for the follow-up. Follow-ups, Because yes, true. first you have to be concerned for your own self to be transformed in a positive way, Very true. so that way it works. Okay. But still I take follow-ups for my people. Now I just want to understand the initial things. मीन्स जब भी कोई बच्चा 12, 13, 14, 15, 16 साल के बीच का समय जो होता है, दैट टाइम दे आर हाईली एक्सपोज्ड ऑन द सोशल मीडिया, दे वांट कांस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. सो उस समय उनका एक दिखावे वाली दुनिया शुरू हो जाता है, Influence इन्फ्लुएंस काफ़ी फ्रॉम द ज़्यादा मल्टीपल होता है. थिंग्स Correct. शुरू हो जाता है. नाउ उनका एक शो ऑफ पैटर्न भी शुरू हो जाता है साथ में. सो वहाँ पे ये हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, क्रिएटिंग ऑटोग्राफ काइंड ऑफ ए स्टाइल, देन दे स्टार्टेड डूइंग. ऐसा कोई सा भी चीज़ है जिसको अगर हमारे को पता हो पहले से कि ये सारे चीज़ें अगर हम सही तरीके से करें, सो वी कैन गो लिटिल बिट ऑन ए करेक्टिव साइड, ताकि बाद में चल के कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. ऐसा कुछ है क्या, कोई पैरामीटर्स? सी एवरी इंडिविजुअल का अपना एक अलग ट्रेड होता है. Yes. जब मैं आपकी हैंड राइटिंग देखूंगी तो इट डिपेंड्स कि आप पे मुझे किन, आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीकर पॉइंट्स क्या हैं, उन पे मुझे कैसे काम करना होगा. सो ग्राफोलॉजी इज़ अ साइंस, बेसिकली एनर्जी साइंस है ये, जहाँ पे मुझे आपके वो जो एज होती है ना, जो आप मुझे बता रहे हो 12 to 18 तक की जो एज होती है, यस. उसमें बच्चों में काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है. यस. ठीक है, तो हमें उस टाइम में क्या करना होता है, उनकी उस एनर्जी को सिर्फ बैलेंस करना होता है. वो होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ अ राइट टाइम, दे आर ग्रोइंग, यू नो. यस. बट टू मैनेज इट इन अ राइट वे इज़ अ Yes. टास्क. टू चैनलाइज इट ऑन द राइट वे. Yes, and that is the most important thing which we can do by graphology, by certain alphabets, definitely. For that, first we have to see the handwriting and the signature. ओके. It depends. नाउ जब कोई प्रोफेशनल्स हैं, लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर द फाउंडर्स और द एंटरप्रेन्योर्स. सो दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ सर्टेन स्टाइल ऑफ राइटिंग और सर्टेन स्टाइल ऑफ सिग्नेचर. अगर उनके बिजनेस में, उनके एंटरप्रेन्योरल जर्नी में या उनके प्रोफेशनल जर्नी में कुछ अगर गड़बड़ चल रहा है, क्या आपके ग्राफोलॉजी एंड ग्राफोथेरेपी कैन डू एनी हेल्प फॉर दैट? Sorry with the question, I'm not completely getting the question. If any professional with that The owner of the company, we owner can of the say. company is Yeah. having certain pattern of writing and signature and all, and professionally उनके लाइफ में कुछ टर्मोइल्स हैं, Correct, हाँ. तो क्या ग्राफोलॉजी या ग्राफोथेरेपी उनकी मदद कर सकते हैं? 100% कर सकता है. What are the things that a professional can take a help from you through the use of graphology or graphotherapy? Okay, so there are financial things also they are dealing with. Majorly, They are, yeah. majorly. So like as you said na, professional business में they are in major depth. Yes. कई बार हम देखते हैं सारे बिजनेसमैन जो होते हैं कई बार काफ़ी परेशान होते हैं. सो दैट कैन बी हील विद द प्रोसेस ऑफ ग्राफोलॉजी. देन ऑल्सो हेल्थ इश्यूज भी उनको होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द बिजनेस उनके फैमिली रिलेशंस भी बिगड़ रहे होते हैं. तो ये सारी चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं. उनके फाइनेंशियल लॉसेस को भी कवर किया जा सकता है. बिजनेस में कंपनी के लोगो जो हम ग्राफोलॉजी के थ्रू बनाते हैं वो भी उनकी बिजनेस में बहुत हेल्प कर सकते हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये कितना ऑर्गेनिक प्रोसेस है, बिकॉज ये एक पैटर्न है, हाँ. हर किसी का अलग है. एवरी सिंगल इंडिविजुअल, इट इज़ लाइक जो थंब इम्प्रेशन होता है वैसा, करेक्ट. हर किसी का अलग है. कोई ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा जो परेशान नहीं है. राइट. कुछ ना कुछ परेशानी तो होगा, फाइनेंशियली हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी होगा. सो एक नॉर्मल उनके इंडिविजुअल पैटर्न को लेके अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें और उन्हें अगर तब्दीलियाँ कुछ करके दे सकें जिनके उनके ज़िंदगी में कुछ सुधार हो सकते हैं, तो कौन नहीं करना चाहेगा.
but they should understand the logic behind it. Otherwise, so there are astrologer, there are tarot card reader, there are multiple people who are giving them lot of ज्ञान. They are giving कि ये इसकी वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है, ये ग्रह की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है. करेक्ट. तो ग्रह आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हैंडराइटिंग तो आपके कंट्रोल में है. Correct. दैट यू कैन डू. सो हाउ एनी प्रोफेशनल कैन कम फॉर ए हेल्प टू यू, एंड व्हाट आर द मेजर थिंग्स जहाँ पे आप उनको सही में मदद कर सकते हैं. फाइनेंशियल इशू तो सबके लिए है, उसमें कितना मदद हो सकता है, ये कितने परसेंटेज तक या कितना इम्पैक्ट उनको दे सकते हैं. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? So first it depends on the person as well, कि how much he or she wants to transform and how much he or she is flexible to understand the process, right? Definitely it will take time. और जितना slow process होगा उतने अच्छे results भी होंगे. बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, जैसे एलोपैथी और होम्योपैथी वाला है, हाँ. हर किसी को तो जल्दी चाहिए रिजल्ट. तो यहाँ पे वो जल्दी You और have to स्लो be consistent for that. एंड यू हैव टू कीप योर पेशेंस ऑन, देन You ओनली have to be very much consistent. बट डू यू गिव एनी काइंड ऑफ एनी गारंटी और ऑथेंटिकेशन कि एक बार अगर ये पैटर्न चेंज हो जाए और एक बार अगर कोई कंसिस्टेंसी इसको मेंटेन करे तो इट विल बी लाइफ लॉन्ग परमानेंट, और दे नीड ए रेगुलर विजिट टू यू? So yes, guarantee is there. Guarantee I is am there? Yes, I am there. I will be there to explain all the process. I will be there. And see, I tell you one thing. There are times when you said ना कि काफ़ी फैंसी दुनिया है. People are very much influenced कि हमें ये भी करना है, हमें बहुत wannabe जो नहीं होता है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है. So I tell you, first you go to a graphologist, understand it. पहले आप उस चीज़ को पूरा समझो एंड देन यू स्टाइल योर सिग्नेचर, बिकॉज आप जैसे भी सिग्नेचर बना रहे हो वो आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं. अच्छा. यस, उसके हिसाब से फिर आपके ट्रेड्स आपके नेचर में डेवलप होंगे. सो जो आप सोच रहे हो वो आप लिख रहे हो, क्लियर है? बट व्हेन आई गिव यू थेरेपीज फॉर अ alphabet or anything, if I give you to make it a daily basis, so when I'm giving you a therapy in a certain way, you have to make it that way only, in a particular way you have to make it that way only. So when you make this way, then again it is going to your brain, to your brain, yes. right? जो आप हो वो आप लिख रहे हो. Once you start writing different thing, आप जैसा लिखोगे आप वैसे बन जाओगे. दैट इज इंटरेस्टिंग. हाँ, जो हम बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन होता है. Yes, yes. हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है. हाँ, तो हम आपकी सोच की जो एनर्जी है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उसको ट्रांसफर मोर कर रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड वे में, मोर गुड एनर्जेटिक कर रहे होते एंड हैं. यू आर कंप्लीटली एंगेज्ड विद दैट प्रोसेस. विद द पॉजिटिव प्रोसेस, यस, वी ट्रांसफॉर्म इट दैट वे. ओके. आप सिर्फ इतना बताइए कि जब भी आप किसी को इनिशियल लेवल पे देखते हैं, मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5 ही मिनट है देखने के लिए, तो क्या बेसिक कौन सी चीज़ों को आप सबसे पहले नज़र करते हो? जैसे हम लोग कहावत के तौर पे कहते हैं कि कोई अगर टीचर है ना, उनको सबसे पहले जो गलत है वहीं पे जाके उनकी नज़र अटकता है, जो सही लिखता है बच्चा वहाँ तक नहीं जाता है, जहाँ पे कुछ उसने गलत लिख दिया वहीं पे जाके पकड़ते हैं. तो बीइंग ए ग्राफोलॉजी, आप किसी को भी देखते होंगे, हर कोई कुछ ना कुछ लिख के दे रहे होंगे आपको. राइट. तो सबसे पहले आप क्या देखते हो उनमें? मैं हेल्थ इश्यूज ज़्यादा देखती हूँ पहले. देयर शुड नॉट बी एनी हेल्थ इश्यूज, दैट शुड बी द प्रायोरिटी. कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि किस में आपको ये नज़र आता है, कैसे इसको आप समझते हो? ओके, जैसे हार्ट ब्लॉकेजेस मुझे आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. और ये किस टाइप की राइटिंग पैटर्न से आपको पता बी चलता है? अल्फाबेट्स जो होता है, पर्टिकुलरली अ बी अल्फाबेट, दैट शोज द ट्रेट्स फॉर हार्ट ब्लॉकेज एंड Yes. एवरीथिंग. एनीथिंग लाइक पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज जिससे 90% लोग गुजर रहे हैं आज की तारीख में? अल्फाबेट, उसके लिए Yes. आप अल्फाबेट जानना चाहते हैं, उसके लिए वाई अल्फाबेट्स होगा. वाई से आप थोड़ा बहुत जान सकते हो कि रिलेशनशिप में क्या So there प्रॉब्लम are है. combinations. Okay. Like one, like Y का हमने चेक किया, अगेन हम किसी दूसरे अल्फाबेट का चेक कर रहे हैं, तो उसके जो दोनों ट्रेड्स हैं बट वो उसका जो मिलके क्या उसका सरदार जो है combination. वो वाई है. हाँ, तो सरदार राइट. या Okay. सो दैट वे. ओके. एनीथिंग ऑन द प्रोफेशनल एस्पेक्ट, उसका कोई लेटर है स्पेसिफिक जिसको देख के आप देखते हो किसके? जी से पता चलता है. हाँ. ओके. तो जी प्रोफेशनल के सरदार हो गए, बी हार्ट के और हेल्थ के सरदार हो गए, वाई रिलेशनशिप जी के सरदार हो पैसे गए. के सरदार है वैसे. जी पैसे के सरदार है. हाँ. जी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. ओके. या
how you started into it, matlab what was your interest level, because this is something which is very very interesting but not that massive in the society. And maybe if you can make it understand to the multiple people, and maybe if we can reach together to the multiple people and a wide viewership or audience, then maybe they can understand the real science behind it, because there is a science behind it. So how this science, or how this gave you that interest that you should be entering into this field? So it's been almost 7 to 8 years to me in this field. I was in Bhuj, Kutch. Okay. So I was there with my husband is in job. So I'm flying with this guy, my husband. Uh, One fine day, I was just sitting with my daughter. We both were just playing, chilling, and I was just trying to search some good abacus, Vedic maths and Yes, some yes, good yes, abacus yes. classes for Yes, her. yes. So meanwhile, I saw the signature and handwriting, and there are some courses, graphology. Initially, मुझे भी लगा था कि graphology मतलब ये कुछ graphic का है. So I was least interested. मैंने उसको साइड किया. बट देन अगेन इट्स लाइक एक बार आप जब देख लेते हो कुछ स्क्रीन पे तो वो पॉपअप होता है ना बार बार, तो वो वापस वैसा हुआ. फिर नेक्स्ट टाइम वापस वो आया तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया. मैंने देखा 2-3 दिन के बाद वापस वो मुझे आया तो मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्ट आया. सो देन आई सर्च इट आउट एंड देन आई डिड अ कोर्स फ्रॉम नागपुर. ऑनलाइन मैंने एक कोर्स किया नागपुर से. Since then I started, I was doing it initially on a very lower level. मैं इतना प्रोफेशनल उसको नहीं कर रही थी. बट व्हेन आई सी द रिजल्ट्स, सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, जब मैं बहुत सारे बच्चों में चेंजेस देख चुकी हूँ, बहुत सारे हेल्थ एस्पेक्ट्स में मैं बहुत सारे चेंजेस देख चुकी, देन आई स्टार्टेड बीइंग लाइक कि हाँ अब मुझे ये लोगों के लिए करना है. आई मीन इफ़ आई एम डूइंग इट और लोग इतना अच्छा रिजल्ट लेके खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो क्यों ना करूँ. सो देन आई स्टार्टेड इट. बट स्टिल उस बेसिस पे नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी और मैं इतना टाइम नहीं दे सकती थी. सो देन आई केम मुंबई. माई हस्बैंड अगेन गॉट ट्रांसफर टू मुंबई. वी शिफ्टेड मुंबई. मुंबई आने के बाद आई गॉट पैरालाइज. दिस लेफ्ट हैंड वॉज पैरालाइज बेसिकली. So there are long stories but I'll go in a shorter. So since then I realized कि यदि मैं मेरा हाथ ठीक कर सकती हूँ तो ऐसी बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं दुनिया में जो इंसान चाह के भी ठीक ना कर पा रहा हो. उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है उस टाइम. दैट कैन बी विल पावर, दैट कैन बी योर स्ट्रॉन्ग माइंड, योर स्ट्रॉन्ग हेड, that can be your confidence level. There are many things which you deal. It's not only about your body part, it's about internal, it's about so much. So when I saw the result, when I could see in myself, it means yes, if I can do it for myself, then why not for the other people's also. So since then I started it more aggressively on a health aspect. फिर जब से मैंने ये किया तो शुरू जब किया अच्छा था. But when I saw such good results, huge people being this in the segment कि हमें बहुत अच्छे results हैं and सब बहुत खुश हैं. There are times I still remember there was a lady who came to me. She lost her husband with 2 sons. The day she came, she was just blank. She was not having any other option कि मैं क्या करूँगी इन बच्चों के साथ. She was so hopeless and everything. And that was the day one. After 7 months, 6 to 7 months, I'll say, her mother, मतलब बच्चों की नानी, she just called me. I was at my home and I just went inside and I'm seeing there was a music, there was a aarti ki thali and there was some sweets, they were just taking my balaya. So this moment created a major impact on me. This much effort is giving this much happiness in this world, then yes, I should do it. That is absolutely right. Nice. And if I talk about about children, Yes. then how much it is impactful for them? Because वहाँ से अगर ग्रोइंग स्टेज से ही अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें या हम अगर जान जाएं कि कैसे ये आगे जा रहा है, तो हो सकता है कि हम उनकी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हैं. Because in nowadays everything is artificial. Even the kind of food people are taking, that is also adulterated. So there is nothing which is natural, original. So if you can give a right kind of a lifestyle, so maybe there can be multiple changes and differences. So see, 0 to 7,
is a mother figure. ओके 7 to 14 is a father figure energy, ओके which we give to our child. ओके So in that age, till 14 years, 0 to 7 तक तो हम ग्रेफोलॉजी का कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ यूज़ भी नहीं करते. ओके एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? नो, बिकॉज दैट एज इज़ वेरी, जब बच्चों के ये ना वो नहीं हो पाते हैं, Grip लिगामेंट्स जो जो बोलते हैं हैं। वो ग्रिप नहीं बन पाते हैं. Okay. एंड दैट इज़ अगेन मदर एनर्जी जो होती है, उस टाइम में बच्चों को वो मदर एनर्जी उस बेसिस पे मिलनी चाहिए. बिकॉज इट्स लाइक वेरी स्मॉल किड ना, 0 to 7 ईयर के किड से आप तो क्या 0 to एक्सपेक्ट. 7 ईयर जब है, हाँ. जब वो बच्चा आज के तारीख में 3.5 साल 4 साल से वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो उसका हैंड राइटिंग डेवलपमेंट तो शुरू हो गया तभी, करेक्ट. बिकॉज ABCD लिखना शुरू कर दिया. हाँ. जो 6 साल में हो गया वो तो आई गेस इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, तब तक तो नाम लिखना भी सीख जाता है. सो उसका तो एक बेसिक जो डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड सिग्नेचर, वो तो बन गया तब तक. 7 years तक, this is what I'm saying, 0 to 7 is a feminine energy, 7 to 14 is a masculine energy. Okay. So in that, in a person, we balance masculine and feminine energy both. ओके ठीक है. तो जो 0 to 7 है, आज आपका कोई बच्चा है, जब वो पैदा हुआ से 7 साल तक का जब वो रहेगा, तब उसको फेमिनाइन एनर्जी जो है वो पूरी मिलनी चाहिए. ओके ठीक है. ठीक है. और 7 से 14 साल जो हैं, वो उस बच्चे को मस्क्यूलाइन एनर्जी जो है वो पूरी मिलनी चाहिए. ओके क्लियर? गॉट इट. नाउ आई टेल यू, आपने व्हाट इज द मस्क्यूलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी विच आई विल रिलेट. आपने किसी पर्वत का नाम किसी फीमेल के नाम से कभी सुना है? नहीं शायद. कैलाश पर्वत या ऐसे जो राइट. आपने कभी किसी नदी का नाम हाँ ट्रू, मेल के नाम से मेल नहीं के सुना नाम है. से शायद नहीं सुना होगा, नहीं, राइट. सो देयर इज अ डिफरेंस, आई टेल यू दिस. नदी इज अ वाटर, वाटर इज अ फ्लो. ओके करेक्ट. सो फेमिनाइन एनर्जी जो है बेसिकली वो फ्लो फ्लो है. है. हाउ इट हैपेंस, लव, केयर, concern, pampering. The most important and the beautiful part is sympathy. So that this all comes by mother. Clear? ओके 0 to 7. ओके When the kid is close to the mother. Right? So you feel that कि अभी लिख नहीं रहा है. But the energy which she is giving, the kid is taking that. The subconscious mind is taking that. ट्रू. So like 7 to 14, if I talk about masculine energy, pahad, stability, decision making, aggression, तपरा है, बारिश है, पानी है, कुछ भी है, ठंड है, stability is there. So these all comes good analysis, sharpness. So these Okay. all things comes by masculine energy. So Okay. that a kid is going to get by father, गॉट इट. right? On your podcast, I'll tell you. आज के टाइम में हम देखते हैं there are times when we are seeing जो मेल है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो फीमेल्स हैं दे आर बीइंग मोर मस्क्यूलाइन. Then we expect from our children to maintain the energy, to balance the energy. How? ट्रू. One single request to each one from the podcast they are listening. Whenever you asking for anything to your kid, first you ask yourself, why you not taking care of your stuff? You both husband and wife, first you ask yourself, who is the one is doing this and from where your kid is learning this. So basically 7 to 14 years तक जो टाइम होता है उसमें बच्चे के सारे ट्रेड्स बन चुके होते हैं. हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा बच्चा है. आपका बच्चा सिर्फ 14 साल तक आपका है. उसके बाद तो वो आपको बताएगा कि मैं किसका बच्चा हूँ. ओके दैट इज़ ट्रू. या दैट इज़ ट्रू. इसका मतलब ये है कि 0 to 7 तक आपके कोई रोल नहीं होता है, तब आप ऊपर से देख सकते हो, बट यू कैनॉट हैव ए एक्टिव रोल इन टू इट.
7 to 14, do you have any role? हाँ, 7 to 14 we analyze, we give the therapies. 7 to 14. Yes, So you comes into the picture after the age of 7. correct. We give the we can design the signature for a kid. Okay. Yes, हाँ. So After you 7 can years. design the signature as well. Yes. Now, what is that process? How you do it? So when we see the signature and the handwriting, then only we can decide what we have to give to that person. There are So times. you design the signature and you ask the person to copy that. हाँ. So I'll design for the person कि आपको अपने ऐसा लिए signature बनाना है. हाँ. That's So first the interesting. person has to practice it. Yes, obviously. हाँ, अगर because- कॉपी करना है, बार बार लिखना है, तो obviously practice तो करना ही है. So it's about brain again. Okay. It's not about copy. It's an art. Yes, like वो बार बार हाँ, वो सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे आई ऐसे लिखना है, हाँ, एन ऐसे तो लिखना है. सबकॉन्शियसली आप अपने माइंड को वैसे Okay. स्ट्रॉन्ग करोगे तब आप वहाँ जाके लिख पाओगे. That is really interesting that you design signature and you give it to the Yes. people. So for that we definitely have to see the handwriting, like what ये कौन से साल से आप कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए, if I talk about some adult individual, like Yes. professional, like founders, anyone who is at the age of 30, वो तो ऑलरेडी एक सिग्नेचर बना चुके हैं. आज के तारीख में 3 सिग्नेचर होते हैं, एक बैंक के लिए होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं और एक इनिशियल होते हैं. correct. तो उस समय अगर किसी के सिग्नेचर बदलना आपके लिए एक सलाह के तौर पे उनको हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कि मान लीजिए मैं ही एग्जांपल हो जाता हूँ, मैं ही सब्जेक्ट हूँ, Correct. मेरा एक सिग्नेचर है, आपको मैंने दिखाया मेरा सिग्नेचर, आपने बोला इसमें ये गड़बड़ है या जो भी है, चेंजेस कर और ये चेंजेस करने से ये बेहतर हो सकता है. ठीक है. नाउ फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप डिज़ाइन कर दीजिए. नाउ यू विल डिज़ाइन. सो मेरा ये सिग्नेचर एनालाइज करने के बाद आपने बदल के दे दिया है, अब मैंने भी उसको कॉपी करके प्रैक्टिस करके शुरू कर दिया है. हाउ कैन आई सी द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग दैट सिग्नेचर इन माई लाइफ? So ये that नया you will सिग्नेचर बनाने के feel. बाद हाँ, that definitely you will feel. Your health will be more good side. Your financial things will be more towards good side. Your relations will be more good. That changes you will see once you start writing it. That's the inner strength. You will automatically feel it. जब आप किसी को सिग्नेचर डिज़ाइन करके देते हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू चेक? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, पैसे के लिए जी है, जो भी हमने डिस्कस किए हैं. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स. एक इंसान की हर ज़रूरत को आपको पूरा करना होता है. Correct. उनको पर्सनल लाइफ को भी अच्छा रखना है, पैसे वाला पोर्शन भी अच्छा रखना है, प्रोफेशनली भी वेल टू डू होना चाहते हैं. तो जब आप किसी सिग्नेचर बनाते हैं एकदम ज़ीरो से, मैंने सरेंडर कर दिया आपको कि आपको जो बनाना है बना के दीजिए, मैं वही फॉलो करूँगा, completely blindly having faith on you. So now what are the things, what are the aspect you will take care as 1 2 3 4 5? It's not about 1, 2, 3, 4, 5. It's about the overall personality. I'll see together. Okay. हम उसमें आपके कोर के जो चीज़ें होंगी, जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, उनको नॉर्मलाइज करेंगे, और जो आपके वीकर पॉइंट्स हैं, अगेन उनको एक बैलेंस वे में लेके आएंगे. सो अगेन फॉर दैट वी हैव टू लुक व्हाट यू मेकिंग. हमें पहले आपके बारे में जानना होगा. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, राइट? नहीं, आप डॉक्टर पहले- के पास मैं जा रहा हूँ जब, तब तो मैं एक किसी स्पेसिफिक बीमारी को लेके जा रहा हूँ ठीक है. कि मुझे पर आप फीवर उसके है लिए या टेस्ट कुछ भी. करवाओगे, हाँ. रिपोर्ट करवाओगे. हाँ. तो जब आप रिपोर्ट करवाओगे, इट मीन्स द सैंपल इट इज देयर. सो व्हेन आई सी द सैंपल ना, तो मुझे पता होगा कि आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है. सिर्फ सिर में ही दर्द नहीं है, घुटने में भी दर्द है. हाँ, और नहीं है तो आने वाला है. ओके. तो मैं यू आपको कैन ये भी फोरसी एज वेल. यस. ओके. और ये हुआ क्यों है ये भी बताऊंगी. ओके. सो दैट वे इट हेल्प्स. इसका मतलब अगर मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब हर किसी को एक बार किसी ग्राफोलॉजी को सहारा लेना चाहिए वंस दे आर क्रिएटिंग देयर सिग्नेचर एंड वांट टू मेंटेन ए नॉर्मल डिसेंट बैलेंस्ड लाइफ फॉर द फ्यूचर. यस, इट शुड बी मैंडेटरी देन. 100%. ओके. फॉर द पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली एक बार आपको ग्राफोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए एंड अपनी हैंड राइटिंग चेक ज़रूर करानी चाहिए. अच्छा. नाउ जैसे वेरी ब्यूटीफुल टूल, आई टेल यू. यस, ऐसा आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि इट इज़ रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड Yes, इफ very एनीथिंग कैन बी डन ऑर्गेनिकली, Very easy to because you are not access. consuming anything from outside, there is no outside sources. No what side effects. naturally what naturally you developed, you are just implementing on something differently
and you are changing hugely. एंड ऑल्सो देर आर टाइम, जब भी आपने देखा होगा पहले के लोग लिखते बहुत थे, Yes, तो क्या इतने कॉम्प्लिकेशंस होते थे? नहीं होते थे. राइट, बिकॉज हमारा ब्रेन उस टाइप से काफ़ी पॉजिटिवली एक्टिव होता था. अब ब्रेन में इतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, लोग बोलते हैं हम लिखते नहीं, तो आप लिखिए, दैट इज़ द ओनली रीज़न आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं. Even I can remember my father was having a very nice signature. मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था. तो जितने भी बैंक्स वाले होते हैं या जितने भी उनके ऑफिस के लोग होते हैं वो हमेशा हमें बोलते थे सलाह के तौर पे कि सर अगर 100 बार भी सिग्नेचर कर रहे हैं एट ए स्ट्रेच तो एक बार भी गलती नहीं होता है किसी में भी. वाओ, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, जबकि हम तो Lovely. 5 कर दे तो चेंज हो जाता है. आई नो, बट दैट्स वेरी नाइस. So people were always comes to us and said that इनका signature देखिए. If sometimes my mother has to do the signature for that multiple times, तो वो दिखाते थे देखिए इनका देखिए. एक में भी कोई इधर उधर नहीं है. ओके, दैट्स नाइस. So that we had seen कि these kind of impacts people even notice that कि how you are doing and in what format you are doing. So जैसे हम लोग भी जैसे हैं 5-6, जैसे आप होम लोन लेने जाओ तो आपको 30 पन्ने में साइन कराते हैं वो लोग. तो जब आप 30 पेजेस में सिग्नेचर करते हो तो आपका सिग्नेचर बड़े से छोटे होता है जैसे शुरू होता है और बाद में जाके अलग ही निकलता है. So that is the original signature. You know, you started with a conscious mind. धीरे धीरे Yes. धीरे जब आप थक जाते हो ना, then it Yes. becomes like subconscious mind. So I tell you one thing, handwriting is a different segment. Again, signature is a different segment. Yes. हैंडराइटिंग जो होगा वो आपके ओवरऑल पे काम करता है. मुझे आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के ट्रेट्स पता चलते हैं. ऑल्दो सिग्नेचर से भी पता चलते हैं, पर सिग्नेचर से ज़्यादातर आपका आउटलुक पता चलता है. मतलब मैं अगर बेसिक समझ पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले हैंडराइटिंग देना चाहिए टू अंडरस्टैंड द एंटायर जर्नी यस, कि कैसा क्या है क्या नहीं है. बिकॉज सिग्नेचर एक स्मॉल पोर्शन है उसका. एंड एक उससे आप एक इंसान का आउटलुक पता कर सकते हो. आउटलुक एज इन उसकी बाहरी जिंदगी कैसी है. और एक चीज, वो है कैसा इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो बाहरी दुनिया को अपने आप को कैसा दिखाना चाहता है ये उससे पता चल जाता है. देयर इज अ डिप्लोमेसी. लोग, देयर आर टाइम्स जब भी घर में कोई बहुत शांत है लेकिन वो बाहर बहुत एग्रेसिव है या यस. डिफरेंट नेचर है उसका. देर आर टाइम्स जब भी वो घर में बहुत एग्रेसिव है लेकिन बाहर लोग बोलते कितना समझदार है, कितना शांत है. सो देर आर चेंजेस. तो वो आप सिग्नेचर और हैंडराइटिंग दोनों में डिफरेंस हो सकता है. ओके. तो जिनका सिग्नेचर और जिनका हैंडराइटिंग दोनों एक दूसरे के साथ लगभग मैच करता है सारे चीज़ें, देयर इज वी कैन अंडरस्टैंड कि द पर्सन इज विद द सेम पर्सनैलिटी. इनके कोई स्प्लिटिंग अगेन देर आर पर्सनैलिटी नहीं है. ट्रेट्स. Okay, now can you please explain that as well? So like every individual alphabet, as I said, Yes. has a different trait, right? So again for that I have to see the handwriting. But the same time there are times इंसान बोलता कुछ है और वो उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी कुछ अलग है. ये तो 85% ऐसे ही है. हाँ, so that is what I said कि when I'm seeing the signature, वो आपकी बाहरी जिंदगी के बारे में तो बता देगा. Superficial life. हाँ, Okay. बट वो एक्चुअली इंसान खुद कैसा है वो जब हम आपकी पूरी हैंडराइटिंग देखेंगे और हम जब सिग्नेचर के साथ मैच करेंगे, देन ओनली वी कैन डिफरेंशिएट. सी, टिल I don't have any alphabet or any line or anything in my hand on a paper, definitely, तब तक to say anything about is not a good thing. और ये हैंडराइटिंग को आपको समझने के लिए आपको कितने लाइंस चाहिए होता है बेयर मिनिमम, मतलब कितना पेजेस या कितने लाइंस आपको चाहिए? Like for the Analyze parameter report or हैंडराइटिंग रिपोर्ट so बनाने there के is a लिए small para also can work. There is a small signature can क्या also आप work. बताते हैं कि आप ये लिख के आइए या ये लिख के हाँ, दीजिए? so for 1.5 page of handwriting, A4 size plain white paper पे 1.5 page of handwriting and back side में जो half page left रहेगा उसमें 3 type of signature recently the person is doing. अब जब आप किसी को ऐसा टास्क देंगे आप मुझे ही बताएंगे कि आप ये देर 1.5 page का आप लिख के लाइए. तो मैं तो एकदम अच्छे से आराम से बैठ के प्रॉपर ठीक है ना? सिग्नेचर एकदम हाँ हाँ, आप ताकि वही इम्प्रेशन हाँ, अच्छा हाँ, रहे I इस know, I तरीके know. के लिए. तो मैं वैसा बनाऊंगा, लेकिन हो सकता है नॉर्मली कुछ अलग ही लिखता हूँ मैं. Correct. जैसे किसी डॉक्टर्स को देंगे, डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं उनको पता नहीं है.
राइट? सो दैट केमिस्ट ओनली कैन अंडरस्टैंड. हाँ, वो जब खुद लिखते होंगे तब कुछ अलग तरीके से लिखते होंगे. करेक्ट. सो देन हाउ डिफिकल्ट इट इज, और हाउ No, it's not at all. For a graphologist, definitely not. सो Because यू कैन I am आइडेंटिफाई in, कि मैं yes, कितना ही टाइम definitely. लिख के आपको इम्प्रेस करने के लिए मैं अच्छे तरीके से लिख के लाऊं, आप समझ Definitely, जाएंगे. because it's a brain. ओके. It's not something आप ऊपर से नहीं कर रहे हो. It's working upon your subconscious mind. दैट आई गॉट इट. यस. हाँ, तो वो आपके हाथ में नहीं है. आप चाह के भी देर आर टाइम्स व्हेन यू वांट टू ट्राई, मुझे अपवर्ड लिखना है, बट आपकी हैंड राइटिंग डाउनवर्ड्स जा रही है. देर आर टाइम्स व्हेन यू फील कि नहीं, मुझे क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्यों नहीं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और फीड है. देन फॉर दैट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. तो क्या इसी वजह से ये जो हम जब बचपन में लाइंस वाले पेपर में लिखते थे, इंग्लिश लिखने के लिए 4 लाइन वाले नोट्स हाँ. आते थे, जहाँ पे कैपिटल लिखने के लिए आपको ये ऊपर के डिस्टेंट वाले right. लाइन को हाँ. देखना है और स्मॉल लिखने के लिए बीच वाले लिखना है. करेक्ट, क्या इसीलिए हमको ऐसे प्रैक्टिस कराया जाता है हाँ. ताकि वी कैन मेक ए राइट काइंड ऑफ ए पैटर्न? करेक्ट, करेक्ट. ऑल्सो आपने देखा होगा 4 लाइन कॉपी में ऊपर और साइड में एक मार्जिन होता था. यस, यस. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. हमें जो सिखाया गया है वो बहुत सही सिखाया गया है. ओके. सो दैट इज कि आप एक डिसेंट तरीके से अपना हाँ. हैंड राइटिंग को क्रिएट करें. पर आप देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, सेम क्लास, सेम टीचर, सेम पोर्शन, सबका हैंड राइटिंग अलग. सबके पेन भी सेम दे दो आप, पेपर भी सेम दे दो, पेपर तो सेम होता ही है. कॉपी सेम. नॉट इवन 2 people have the same handwriting on this planet. वेरी ट्रू. Why? Because their conscious mind and subconscious mind is differently playing. Yes. Okay. Which is a very major role playing in your life. अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पूछता हूँ आपको कुछ. अभी मुझे तो खैर पता है आप क्या करते हैं. मान लीजिए कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ आपको दे दिया हूँ लिख के, या आपने मेरा हैंड राइटिंग देख लिया कहीं, और आपको किसी के बारे में कुछ ओरिजिनल पता है और वो सामने आपसे अलग तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे सुपरफिशियली लोग करते हैं अपेरेंटली. आप फिर कैसे उनके साथ आप कैसे रहते हैं? क्योंकि आपको जब पता होता है किसी के सच्चाई के बारे में, हाँ. और जब आप उसी इंसान को अलग तरीके से देख रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. सो हाउ यू मैनेज इन दैट काइंड ऑफ एन सिचुएशन? एट द सेम टाइम वी नो दैट कि ये ऐसा क्यों है. डिड यू गेट इट? ओके. So सो when उसका you हैंड राइटिंग know- सबको पता है कि वो अंदर कुछ है, दिखाता बाहर कुछ और है, बट वो ऐसा क्यों है. ये भी पता होता है. यस. सो व्हेन यू नो दिस रीजन ना, कि ये ऐसा क्यों है, तो आपका नज़रिया अलग हो जाता है. right, we don't judge people, we don't can be that way कि ये ऐसा है. So we always have a soft corner for the person कि ये ऐसा क्यों है. अब ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, कैन यू प्लीज़ टेल मी, और कैन यू प्लीज़ ब्रीफ मी अबाउट कि ये कितना डिफरेंस है कि हम बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को भी हम देखते हैं, और मेजरली वी आर इंक्लाइन टू दोज थिंग्स कंपेरेटिवली हैविंग ए साइंटिफिकल आस्पेक्ट ऑफ ग्राफोलॉजी. ये क्यों है, और ये कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? जितना ग्राफोलॉजी इम्पैक्ट दे सकता है, उतने ही लोग, उससे ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, उतने ही लोग न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं. करेक्ट. सो एक जगह नंबर का खेल है, एक जगह ग्रह नक्षत्र का खेल है, और एक जगह जो आप बन गए हो उसका खेल है. तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? Being a graphologist, I will be very wise. A person who is saying, I believe in this, I believe in that, I believe in this, I believe in everything, which is very good. Why I tell you? जितना इंसान को खुद के ऊपर बिलीव होगा ना, उसको हर चीज़ में बिलीव होगा, हर बात में बिलीव होगा, हर काम में एक उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेकेंड थिंग इज, everyone has a choice. You have a plate full of everything. Now it's up to you. कि आप किस तरफ जाना चाहते हो? किस चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हो? That's again up to you. It's all about your own choice, your own attraction towards the energy. Because all are energy concept. Yes, that is true. So right. So आप किस एनर्जी को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हो? There are times when people are saying कि हमें वास्तु में ज़्यादा बिलीव है. Yes. करेक्ट है. दे आर सेइंग हमें ग्राफोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव है. करेक्ट है. एवरीवन इज करेक्ट. आई एम सेइंग, आई विल नॉट से कि ग्राफोलॉजी
दिस इज द ओनली ऑप्शन. हाँ, लाइक आई जस्ट बिलीव यू बिलीव इन एवरीथिंग, in whatever is just making a difference in your life and that. transforming you, just go ahead. I'll not be being the person कि मैं सिर्फ मेरे business को promote करूँ. You understanding what I'm trying to Yes, tell? I got it. My motive is इंसान की ज़िंदगी में changes होने important है. अगर आपके सर्विसेज के जरिए हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको Very बिलीव good, करें. definitely. बट हाँ, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए. अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप ज़्यादा हेल्थ पे फोकस करते हैं, हाँ. बिकॉज दैट इज़ ए Kids यूनिवर्स also, प्रॉब्लम. yeah, kids also. यस यस. सो हिंदुस्तान, अभी कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान तो डायबिटीज़ के लिए कैपिटल बन गया है लगभग. सो इज़ देयर एनीथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू ग्राफोलॉजी कि डायबिटिक प्रोन है या ऑलरेडी देयर आर थिंग्स? बिकॉज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे किसी से, तो वहाँ पे ये पता चला मुझे, उनका ये कहना था कि डायबिटीज़ जैसे कि हम मानते हैं कि इट इज़ हेरिडिटरी डिजीज़, बट इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू हिम. करेक्ट. सो तो ज़रूरी नहीं है कि फादर का है तो बच्चे को भी होगा. ठीक है, वेल, गुड इनफ. नाउ हैंडराइटिंग से क्या आपको ये दिखता है कि ये डायबिटिक प्रोन है, कि आफ्टर दिस एज ही मे गेट सफर थ्रू दिस? Yes. See, I tell you, heredity is what? हेरिडिटीज़ जो भी, मतलब वो तो हम नेगेटिव तरीके से ही लेते हैं कि जो ख़राब चीज़ें माता पिता को रहें या दादा दादी को रहें, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते जा रहे हैं. Right. So now I explain you. जब हम पैदा होते हैं तब हमें सब चीज़ें नहीं होती हैं हमारी बॉडी में. नहीं होती है ना, शुगर नहीं होती है, ब्लॉकेजेस नहीं होते, कुछ भी नहीं होते. हम बड़े हष्ट पुष्ट और खुशी खुशी आते हैं इस दुनिया में. फिर क्या होता है, मैंने आपको जो बताया ना, 0 to 7 मदर फिगर, 7 to 14 फादर फिगर. ओके. उसके बाद हम हेरिडिटी इज बेसिकली थॉट प्रोसेस. इंटरेस्टिंग. जिस थॉट में आप रह रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, जैसा आप सुन रहे हो, जैसे अच्छा. आप उसको आपने अपनी थॉट में डेवलप कर लिया. शरीर में बीमारी बाद में आती है, पहले सोच में आती है. सो बाय द ग्रिफोलॉजी हम आपकी सोच को पैम्पर करते हैं कि आप सोच क्या रहे हो, ये भी सोचो पहले. एंड बाय द थेरेपी बेसिकली वी पैम्पर योर थॉट्स इन अ पॉजिटिव सेंस. आप क्या सोचोगे ये तो मेडिटेशन करके भी समझाया जा रहा है. राइट. कि आप अच्छा सोचो, हर किसी के बारे में अच्छा बोलो, आप किसी को अंदर से भी गालियां नहीं दो, बाहर तो दो ही मत. ये सब तो वहाँ पे भी बताया जा रहा है. दिस इज व्हाट आई सेड ना, कि देयर आर डिफरेंट थेरेपीज, ब्रीदिंग थेरेपीज, मेडिकल थेरेपीज, ग्राफोथेरेपीज. मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके घर में या आपके फादर या ग्रैंडफादर कुछ भी जो चले आ रहा है, कुछ ऐसा, अगर आप उसके बारे में उस तरीके से नहीं सोचे या उसमें उतना पढ़े नहीं रहें, तो यू कैन अवॉइड दोज थिंग्स. आई गिव यू a very small example. यस, बेटर. There is a word called compulsive disorder. यस. There are people those who are Yes, yes, suffering कि yes. systematic, over systematic होना life को. Then there are some compulsive disorder as in कुछ चीज जगह पे रखी है. फॉर एन एग्जाम्पल, यदि उनका ऐसा है तो वो ऐसा ही होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. Yes, yes, So that your kid, the one who's staying with you, is looking at this, is listening it, and he's living with this environment and energy. वो उसने सीख लिया. अब जब वो उसने सीख लिया तो वो उसके अंदर एक पैटर्न बन गया, उसके अंदर वो एक ट्रेट बन गया, ये बन गया हेरिडिटी. वो थॉट बन गई, और थॉट बन गई है बीमारी. बट इसको डायबिटीज़ में आप कैसे देखोगे? वहाँ पे तो फूड पैटर्न ऐसा नहीं होता है जो पूरे फैमिली खा रहे हैं वही खा रहे हैं. अब किसी को उसमें डायबिटीज़ डेवलप हो गया है, देन आपने कई बार सुना होगा, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जो लोग बहुत लंबा गैप रखते हैं खाने में, सुबह से जो कुछ नहीं खा रहे हैं, 2-2, 3-3 बजे खाना खाते हैं, उनको नॉर्मली शुगर होती है. आजकल तो उल्टा हो गया है. आजकल लोग ये बता के जा रहे हैं कि देयर शुड बी इंटरमिटेंट फास्टिंग, जहाँ पे 16 घंटा आपको भूखा रहना है. करेक्ट. यू विल बी फाइन.
हाँ, बट डिपेंड करता है वो पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी, आई बिलीव, क्योंकि मैंने भी किया था. सो व्हेन आई सॉ सम मतलब चेंजेस. that is depending on your physiological 100%, aspect. दैट इज़ अ डिफरेंट Got थिंग. it. ठीक है. सो जैसे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम देख रहे हैं कोई 3 बजे खाना खा रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया है. फॉर एन एग्जाम्पल, माई मदर इज देयर. आई एम लुकिंग एट माई मदर, शी इज़ नॉट टेकिंग अ सिंगल मील. 2 बजे 3 बजे तक वो पूजा कर रही है, लेट चल रही है, आराम से खाना खाएगी, सबको खिला के खाई. एंड आई माई सबकॉन्शियस माइंड हैज़ डिसाइडेड माई ट्रेड्स आर फिक्स, नाउ अगेन आई विल डू द सेम. Okay. हम कई बार क्या सोचते हैं, हम जो समझा रहे हैं ना, उससे चीज़ें ठीक होंगी. फॉर एन एग्जाम्पल, हम बच्चों को कई चीज़ें समझाते हैं कि हम इनको समझाएंगे, हमने ऐसा किया है, तुम मत करो तो चीज़ें ठीक होंगी, पर नहीं होंगी. मतलब बच्चा आप देख के उसके सीखेगा. सामने नहीं करो, या आप जैसा कर रहे हो वही वो डेवलप करेगा सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, वॉट एवर यू कॉल इट. इट्स समथिंग, आप उसके सामने नहीं करो ऐसा नहीं बोल सकते. आप कहीं मत करो. यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस लाइफ. यदि आज आप सोच रहे हो मैं उसके सामने नहीं करूँगा, तो कल बच्चा सेम चीज़ करेगा, आपके सामने नहीं करेगा. दैट इज ऑल्सो ट्रू. राइट. Yes. सो दैट वे इट वर्क्स. तो जिस पैटर्न में आप अपनी ईटिंग हैबिट्स हैं वो आपने ट्रांसफ़र की हैं. आपको ऐसा लग रहा है आपकी ईटिंग हैबिट है, बट आप अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिला रहे हो. नो मैटर आप क्या ज़िंदगी जी रहे हो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके. आपका बच्चा वो जीने वाला है जो आप जी रहे हो. आपका बच्चा वो नहीं जीने वाला जो आप उसको सिखा रहे हो. This is interesting. So that means now if I talk about any medical complications जो हम सोच के ही रख देते हैं कि उनको है तो हमें भी आएगा या आगे चल के जाने वाला है, we can avoid it at By the the most. therapy, yeah. हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चाहते हैं. एंड सेकेंडली जो मैं आपको पहले ही भी जानना चाह रहा था कि ग्राफोलॉजी के थ्रू बीमारी की जो प्रोननेस होता है हाँ, कि right. क्या क्या चीज़ों के बारे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हाँ. कि ही और शी इज़ प्रोन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, Correct. सो दैट उसका फूड हैबिट को आप तभी चेंज कर सकते हो या उसके लाइफस्टाइल को तभी चेंज कर सकते हो. Correct. बिकॉज आज की तारीख में हिंदुस्तान मेजरली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज से ज़्यादा परेशान है, वजह की कोई फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डिजीज से. सो हाउ यू डू इट. या इट इज़ देयर. 2 साल बाद यदि आपको कोई बीमारी आने वाली है तो ग्राफोलॉजी में पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से हम आपको बता सकते हैं कि 2 साल के बाद आपकी लाइफ में आपको ये प्रॉब्लम आने वाला है. एंड रेमेडीज़ थेरेपी में ही होंगी, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होंगे या जो लिखने का रहेगा वो ही थेरेपी रहेगी. लाइफस्टाइल वो खुद चाहेंगे फिर चेंज हो जाएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट इन ग्राफोलॉजी लाइफस्टाइल का कोई सेगमेंट नहीं देंगे, हम हैंड राइटिंग की ही थेरेपी देंगे ग्राफोलॉजी. ओके. सो यू विल बी सजेस्टिंग कि आप ये हैंड राइटिंग को इस तरीके से बदल के आप हाँ, अल्फ़ाबेट्स. अल्फाबेट्स हाँ, some alphabets, 4 to 5 alphabets will be there. Your signature एंड will यू be. आर कॉन्फिडेंट कि अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए प्रोन आपको दिख रहे हैं जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हो, वो बिना लाइफस्टाइल को बदले सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट को बदल के वो अवॉइड कर सकता है. हाँ, अभी आप देखो, जब वो इंसान अल्फ़ाबेट चेंज करेगा तो क्या चेंज होगा. माइंडसेट चेंज होगा, जो सिग्नल वो देगा वो अलग तरीके से देगा. ठीक है, तो जब माइंडसेट चेंज होगा तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में चेंजेस होंगे. That means you are saying that graphology is interrelated to the neurons and neuroscience. Okay. Because it's completely working upon. So whatever the chemical equilibrium is happening in our entire body Yes. through graphology and through your therapy, you are changing those patterns. हाँ, That you mean to say. with your brain. हाँ, your the brain, chemical like, chemical imbalances or balances are happening through brains Correct, only. correct. So which is working there. Then that means deep down that every signal what is through graphology or through your therapy, it goes to the brain. You are changing the pattern of releasing those chemicals which is actually defining your body pattern, actually defining your health, actually defining your lifestyle. Yes. So there is the deep down meaning for the graphologist and the graphology to analyze that I understood. Yes. Wow. Even I can see your signature after the podcast. So now I just want to understand 2-3 things. How you feel that the lifestyle तो कोई change करेगा नहीं करेगा, that is not in your hand. You cannot suggest it also because it is not your दायरा.
आप अपने दायरे में उसको अल्फ़ाबेट्स चेंज करने के लिए बोलते हो। अल्फ़ाबेट्स चेंज करना रातों रात की तो बात नहीं है, इट विल टेक 15 20 30 डेज़ एंड कांस्टेंट रेगुलर इंटरवल में उसको करना है, तभी जाके होगा। क्योंकि अगर आपको डी आप एक तरीके से लिख रहे हो और कल से आप बोल देंगे कि डी ऐसे लिखिए, तो रातों रात तो बदलता नहीं है। करेक्ट। सो दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट जब मैं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उस डी का पैटर्न जब चेंज कर रहा हूँ, तो स्लोली मैं अपनी जो सिग्नल देने का जो तरीका और उस सिग्नल से जो रिएक्शन होने का तरीका, वो मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ। तो क्या यही प्रोसेस है जो आप बोल रहे हैं कि ये थेरेपी के ड्यूरेशन में ये चेंजेस हो जाता है? हाँ। बिकॉज यू आर चेंजिंग द पैटर्न ऑफ द The सिग्नलिंग traits एंड in रिलीजिंग your द mind, those chemicals. traits which you keeping since quite longer time. तो ये कितना समय लगता है? आप मेरा Again, it's a question. बच्चों में ये चीज़ जल्दी हो जाती है। Obviously. They are quite flexible. Yes. काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, rigidity डेवलप नहीं हो पाई। Yes. बट इन लाइक 40 के बाद थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। स्टार्ट इन अ वीक। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ये तो समझ में तो एडल्ट को ही आएगा। मतलब आपके सर्विसेज, अगर मैं इस तरीके से आपको पूछूं कि आपके सर्विसेज लेने वाले में से जो एज ग्रुप है वो मेजर कौन से एज ग्रुप ब्रैकेट में आते हैं? एडल्ट्स ही होते हैं, देन पेरेंट्स डेफिनेटली। बच्चे नहीं करते, पर पेरेंट्स अभी एक फंडामेंटल है। पेरेंट्स को चाहिए वो खुद चेंज ना हो, लेकिन but बच्चे चेंज उनके हो जाएं। बच्चे चेंज हो जाए। सो दैट इज आई मीन इट्स अ टास्क, यू नो, लाइक यू शुड रियली अंडरस्टैंड। यदि आप खुद चेंज होंगे, साथ साथ बच्चे को चेंज इसीलिए करेंगे। तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग बुलाया जाता है, पेरेंट्स को भी बुला के समझाते हैं बच्चों के सामने कि आप भी ये नहीं करिए तब ये करेगा। पर पेरेंट्स तब भी नहीं सुनते। Okay, that is interesting. Now I got your point that how graphology actually impacts, and there is a true science behind it. I must say that if it is the right process and it is the right way that you are saying. Yes. Okay. So now this is all about, I talked about health. Yeah. क्योंकि आपका भी मेजर फोर्टे हेल्थ ही है, यू आर ऑल्सो फोकसिंग मेजरली ऑन हेल्थ. नाउ इट इज़ पर्सनैलिटी इशूज़ और द पर्सनल रिलेशनशिप इशूज़, जहाँ पे 14, 15, 16 साल से शुरू हो जाता है, फिर तो लाइफ लॉन्ग, ऊपर ब्रैकेट नहीं है इसका. वहाँ पे हाउ इट कैन गिव एन इम्पैक्ट? सो रिलेशनशिप के बीच में क्या होता है, हम वहाँ पे तो क्या है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको, रिलेशनशिप तो एक के साथ नहीं है, 100%। सामने भी कोई एक है, ठीक है, आप आपको कंट्रोल कर सकते हो, सामने वाले पे तो कोई कंट्रोल है नहीं. तो हाउ दिस विल प्ले? सो सी, रिलेशनशिप एनालिसिस के टाइम में क्या होता है, व्हेन यू हैव योर पार्टनर, यस, राइट, सो वी आई विल सी बोथ द अब ये हैंडराइटिंग्स। कुंडली मिलाने वाली बात हो गई. हाँ, ओके, right, so I'll see both the handwritings. I'll tell this trait to this guy, this trait to that guy, कि आपकी लाइफ में ये जो वीकर हैं वो उनके स्ट्रेंथ हैं, और जो आपके वीकर हैं वो उनके स्ट्रेंथ हैं. सो देन वी हैव टू बैलेंस द एनर्जी इन बोथ ऑफ देम. अब मैं अलग तरीके से पूछता हाँ. हूँ, अब आप जवाब दीजिए मुझे. दोनों को आपने बिठा लिया, हाँ, आपने दोनों का हैंडराइटिंग देख लिया, आपको साफ साफ दिख रहा है कंफर्टेबिलिटी नहीं है, अब आप उनको सजेस्ट कर रहे हो कि ये बदल दो तो कंफर्टेबल हो जाओगे. ओके, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना. हाँ. सो नाउ व्हाट इज योर रोल? सो एज इन सी, ये बहुत क्लियर चीज़ होती है किसी भी रिलेशनशिप में कि उन दोनों को एक दूसरे के लिए चेंज होना है या नहीं. फर्स्ट पॉइंट इज दिस, राइट, इफ़ दे आर रियली विलिंग टू चेंज, दे विल डेफिनेटली. एंड आई बिलीव आज के समय में ग्राफोलॉजी इज़ द चीपेस्ट टूल टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एज वेल. पेन, पेपर, रेगुलर थेरेपी, मेन तो है बिलीव. एक्सपेंस तो टू मतलब थिंग्स. हम लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं कि वो महंगा है तो अच्छा होगा. तो वो तो So I बिलीफ है believe कि in उसका साइंस graphology- समझना ज़रूरी है. In graphology, I believe there are two things: consistency and faith. फेथ तो हर चीज़ की बुनियाद है. खैर I believe यदि ये दो चीज़ें आप में हैं, आप ग्राफोलॉजी की हेल्प से अपनी लाइफ में जो चाहते हो पॉसिबल है. नाउ अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट कि क्या ग्राफोलॉजी कंपेटेबिलिटी चेक भी कर सकता हाँ, है? हैव यू एवर सजेस्टेड एनीवन कि ये कंफर्टेबल नहीं है, या आप ब्लंटली कभी किसी को बोलते हो कि ये कंफर्टेबल नहीं है, आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो? ब्लंटली तो नहीं बोलते, बिकॉज हमें वो भी देख के पता चल जाता है ना कितने ईगो इश्यूज हैं.
अच्छा, हाँ, तो ये भी तो there are प्रॉब्लम है। there are times when the person is sitting next to the person and if we are saying कि ऐसे नहीं बोला तो उनमें भी लड़ाई नहीं करवाना ना मुझे अच्छा, तो दिस इज ऑल्सो सो राइट। दैट वे बट हाँ हम डिप्लोमेटिकली उन्हें वो चीज़ें समझा देते हैं और बता भी देते हैं बट इफ़ दे आर रियली विलिंग टू चेंज इट हो भी जाती है चीज़ें एंड कंफर्टेबिलिटी टेस्ट होता है। मैं आपको एक साइंटिफिकल एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली इन 2025 ओनली दैट यूएई गवर्नमेंट हैज़ उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि बिफोर मैरिज बोथ द पार्टनर हैज़ टू चेक द डीएनए टेस्ट। जेनोमिक टेस्ट होना ज़रूरी है बिकॉज आज की तारीख में लेट मैरिजेस हो रहे हैं या जो फीमेल्स हैं दे आर नॉट प्रोन टू हैव चाइल्ड बर्थ बिटवीन देयर 20 to 30, दे वांट टू बेबी आफ्टर 40, समटाइम्स even after मतलब 45 because of their professional issues and other things. So egg freezing, IVF, lot of things has started happening. So UAE government ने ये जारी किया है कि if you are getting married then you check the DNA fast so that the country wants a healthy baby to live, right? ताकि अगर आपको पता चल जाए कि आप दोनों में डीएनए में कोई प्रॉब्लम है सो व्हेन यू विल बी प्लानिंग फॉर ए बेबी दैट बेबी मे get a birth as a not normal or abnormal or as a special child. Correct. They want to avoid that. So they are taking this step to have a scientifically tool कि आप अपना डीएनए टेस्ट करके कंपेटेबिलिटी चेक करो एंड देन यू गो फॉर मैरिज. ओके सो दिस इज वन साइंटिफिकल टूल. नो वन कैन डिनाई दैट और ये तो गवर्नमेंट ने बता दिया है तो आपको फॉलो करना ही है. यू आर चैलेंजिंग दैट थिंग विच इज़ हैपनिंग इन द डीएनए दैट इज इन द ब्लड. वो ब्लड सैंपल से किया जाता है. यू आर सेइंग कि द सेम थिंग यू कैन चेक थ्रू ग्राफोलॉजी थ्रू देयर हैंड राइटिंग. 100%. Yeah, very easily. See, when I'm seeing both the handwritings, योर कॉन्फिडेंस इज गिविंग मी ए पजल. I mean, there is nothing big in this. Like when you study, like जिस चीज़ में आप हो, जो काम आप दिन रात कर रहे हो, when you seeing both the handwriting, when you seeing इनके बी में देखो कितना ओपन है, कितने ब्लॉकेजेस हैं, इनका आर देखो, they are very prone to cancer or like there are multiple combinations, you know, there are multiple traits which I am seeing, which I know that this person is going this. अभी उसको वो ये हुआ है तो we know the reason also कि why it is coming in his or her head. So we never say a person कि आपको ये चीज़ है. We always ask the person कि आपके घर में ये होता था क्या? ओके. आपकी दादी ने आपसे कभी ऐसे बोला था क्या? So we ask in that way. So when the person is replying, तो हमें समझ में भी आ जाता है कि yes, these are the traits why the person is dealing this life. इसका मतलब ये है कि कोई अगर रिलेशनशिप में है या मैरिजेस में आगे बढ़ना चाहते हैं दे शुड ऑलवेज कंसल्ट अ ग्राफोलॉजिस्ट. दे कैन अंडरस्टैंड बेटर लाइफस्टाइल Better कि lifestyle हाउ and कैन दे also कैन the गो अहेड विद. relation, yes, how to live a healthy and a nice future with a partner. तो थोड़ा सा हमने हेल्थ को कवर कर लिया है, थोड़ा सा हमने पर्सनल रिलेशंस को भी कवर कर लिया है. नाउ अगेन कमिंग बैक टू द प्रोफेशनल्स बिकॉज प्रोफेशनल में 3 एस्पेक्ट है. एक कोई बंदा जो बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है या कुछ करना चाह रहा है, या तो वो नाम के लिए कर रहा है, फेम के लिए कर रहा है, या जेन्युइनली बिजनेस करना चाहता है, प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है एंड वेल टू डू बनना चाहता है. वेल्दी तो सब लोग बनना चाहता है, उसको तो कोई उसका कोई कैटेगरी नहीं है. नाउ थ्रू ग्राफोलॉजी ऑब्वियसली आप तो बोलेंगे कि सभी कुछ इम्पैक्ट किया जा सकता है, सभी कुछ बदला जा सकता है. व्हाट शुड बी द राइट प्रोसेस बिकॉज वेल्दी कोई रातों रात नहीं बन सकता है, Correct. फेम किसी को कोई रातों रात नहीं मिल सकता है. सो सब कुछ का एक प्रोसेस है. 5 to 10 years की एक जर्नी है which defines and shapes your career. सो इन दैट कैटेगरी जब कोई प्रोफेशन शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुका है तब आप उसको किस तरीके से गाइड कर सकते हो ताकि ये जितने भी उसकी मंशाएं होते हैं कि उसको फेम भी चाहिए, उसको वेल्थ भी चाहिए, वो शांति से भी रहे, उसके पर्सनल भी ठीक रहे, हाउ यू कैन चैनलाइज थ्रू योर सर्विसेज टू ए प्रोफेशनल. So see, as far as graphology का concept is the concept, therapies होंगी, वो उनको कंटिन्यू करनी होंगी, उससे उनकी लाइफ में या उनके बिजनेस में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाई इट हैपन्स वी सी दैट. ठीक है, जब हम ये देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ क्यों हो रही है. फॉर एन एग्जाम्पल, देर आर वेरी हायर ग्रजेस, यस राइट? यस. So that is the core, I tell you.
everywhere. You can relate in every field. That is the core. So we basically release the grudges by some alphabets. ओके And that is again with your own core, like parents. There are times when you're keeping some grudges with your parents. यस That is the very strong point हाँ which you really should work upon on daily basis. Now I tell you how people take grudges as. For an example, एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स अब नहीं है दुनिया में, बट दे डिड वेल इनफ, अच्छा चल रहा है उसकी लाइफ में. फॉर एन एग्जाम्पल, मदर है, फादर नहीं है, पर उन्होंने अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा किया है. ठीक, बच्चा इज हैप्पी, बट द सेम टाइम द किड हैज अ ग्रजेस. बोल रहा है वो कि नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मुझे उनसे बहुत प्यार था, बट डीप इनसाइड द किड हैज अ ग्रज कि आप मुझे छोड़ के क्यों गए. इवन दिस थॉट इज होल्डिंग यू बैक. ओके So remove grudges when you talk about professional life or business aspects. Always जो grudges हैं उनका पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है फाइनेंशियल इश्यूज में विद योर Okay. फादर फिगर. अच्छा हाँ, इंटरेस्टिंग. सो दीज आर द वेज एक इंडिविजुअल को आप बता रहे हो ये. हाँ. मैं समझ गया हूँ थोड़ा बहुत कि एक प्रोफेशनल अपने लाइफ में ये बैलेंस ला सकते हैं थ्रू रिमूविंग ऑल दीज थिंग्स. so when I'm मतलब giving ये the आपकी है कि आप एक किसी इंसान को आप एक डिसेंट इंसान बना रहे हो जिसमें ग्रजेस नहीं है या कोई एक्सटर्नल टेंशन या स्ट्रेस नहीं है. उस तरीके से आप उसको डिसिप्लिन बना रहे हो थ्रू देयर लाइफ Right. एंड दे कैन डू वेल. एंड ऑल्सो जब भी आप किसी के बारे में किसी के पिता के बारे में जब उनसे आप काउंसलिंग कर रहे होते हो, तो दे आर मोर ओपन टू यू, राइट. यस जब वो आपसे अपनी सारी बातें बोल रहे होते हैं कि ऐसा हुआ, मुझे बिज़नेस में ये है, मुझे बिज़नेस से ये प्रॉफिट हुआ, मुझे ये लॉस हुआ, मैं मेरे बिज़नेस में इतना परेशान हूँ, सो वी नेवर गो ऑन द फिगर्स, वी नेवर डिस्कस अबाउट द फिगर्स. देन वी आस्क वाई, बिकॉज यू होल्डिंग दोज थॉट्स विद इन यू which is coming quite a long. There are people those who are paying for their parents. काफ़ी कर्ज किया था मेरे पिता ने, आई एम स्टिल पेइंग फॉर दैट. बट माई फादर इज़ वेरी गुड, आई लव माई फादर, बट द सेम टाइम यू हैव द ग्रजेस. In the back of the mind you have that right. That is subconscious mind. Okay. So And we that is release- playing the major role according to you. Yes. That 80% is that is the yes, subconscious mind. definitely. Okay. So we work upon that 80%. Interesting. Now, in today's time, if I talk about founders, even there are co-founders. That means compatibility. Maybe not is personal level, but in professional level. और ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने देखा भी है कि भले ही आप पर्सनली बहुत कंफर्टेबल हो, बट प्रोफेशनली हो सकता है आप कंफर्टेबल नहीं हो. So now when there is a partnership, now when there is an external partner coming into your business, now when you are working as a founder and co-founder, how you can guide them and how your services can guide them. Very simple. Partnership assessment. सो पार्टनर्स दोनों के जैसे आप पर्सनल रिलेशनशिप के लिए Yes. करते हैं, वैसे ही दोनों पार्टनर के हैंडराइटिंग के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि कंफर्टेबल है कि नहीं है. Yes. अब पार्टनरशिप में जो कंफर्टेबल अगर नहीं है ना, तो भी वो चाहते हैं कि पार्टनर ही बने रहे. वहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं होने का कट आउट नहीं चाहते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन मांगा जाता है हमेशा Right. कि मैं तो इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, भले ही आपके न्यूमरोलॉजी या आपके ग्राफोलॉजी कुछ और ही बोल रहा है, मुझे तो इसी के साथ बिजनेस करना है बिकॉज ही इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर मी. सो नाउ हाउ यू इम्प्रूव देम So इफ दे आर there नॉट is- कंफर्टेबल. Yeah. So there is not that way कि आप इनके साथ मत करो business, या they are not comfortable for being a partner. No. So what we can do in that is हम उसको एनालाइज करके ये क्लियरली बता सकते हैं कि फील्ड वर्क किसको देखना है. ओके, गॉट योर पॉइंट. यू आर डिफाइनिंग द रोल्स Yes. कि ये इसमें Then अच्छा है, आप उनको ये दे दो. transactions and digitalization nice way. किसको देखना है. So then we can give them the specific category. You only have to work upon that.
आप इसमें मत घुसो. मार्केटिंग कौन करेगा? ओके, इंटरेस्टिंग. सो व्हेन आई एम गिविंग कंपनीज में एनालिसिस करते हैं हायरिंग के लिए एंड ऑल, सो देन आई एम सेइंग, सो फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हो कि कोई इंसान है वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है एंड यू आस्किंग दैट पर्सन टू सिट ऑन अ रिसेप्शन, बट वो बंदा है मार्केटिंग मटेरियल. यस. सो देन वी विल सजेस्ट कि आप इसको मार्केटिंग में करो एंड द सॉफ्ट स्पोकन पोलाइट पर्सन जो होते हैं उनको आप रिसेप्शन पे बिठा सकते हो. सो दैट वे वी डिफरेंशिएट Got your point. by the analysis. That is interesting. Do you personally believe in any of the astrology, numerology and anything as an individual? भूल जाइए कि आप एक ग्राफोलॉजिस्ट हैं. As an individual मैं अगर आपको पूछूं, क्योंकि सी हम लोग जब बड़े होते हैं, ग्राफोलॉजी तो मुझे लगता है कि बहुत नया कॉन्सेप्ट है. एस्ट्रोलॉजी तो हम लोग जनक हैं उसके हिंदुस्तान. तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब तो चले आ रहे हैं. तो एज ए इंडिविजुअल जब आप बड़े हो रहे थे तब भी आपके सामने इन सब का एक्सपोजर तो रहा ही होगा. Right. So, do you have any faith on any other thing apart from the graphology, as you know it well? So, of course, I believe in graphology, no doubt. मेरा उसके ऊपर जो फेथ है शायद इतना बाकी चीज़ों पे because आप नहीं है in-depth एज ए जानते हैं. इंडिविजुअल. या तो मेरा इसके ऊपर ज़्यादा है ग्राफोलॉजी के ऊपर. एज फार एज अदर थिंग्स आर कंसर्न, सो आई ऑलवेज लिसन, आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न, आई अप्रिशिएट जो भी हो रहा है दुनिया में. अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, बट as being a Hindu, as being a Brahmin from a family, so I'm more into Hanumanji's Bhakt. Okay. So I'm so much into Hanuman Chalisa and all. Okay. So I believe आपका नॉर्मल डे कैसा होता है अगर मैं आपसे पूछूं? okay. नॉर्मली मतलब आपका जो रूटीन होता है या नॉर्मल जो डे होता है, Correct. बिकॉज आप सबको बोल रहे हैं कि एक ऐसा नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहिए, रजस नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन तो हर किसी को सेकंड मिनट में क्या होने वाला है हमें नहीं पता होता है, राइट? सो दिस इज सो अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड वी आर लिविंग टुडे. व्हाट इज़ योर डे एंड हाउ यू प्लान योर डे एंड हाउ यू लिव योर डे? So I am a morning person. By 4:30, max 5, I get up in the morning. I take my coffee and everything. जो morning अपने routines होके. Then I go for walk. So I have a daughter. She's going school in the morning. I take care of her. Now she's grown by the way, but I don't need to take care. But I love to take care of her. So then she's leaving for school by 6:30 in the morning. She's having her bus by 6:30. Then definitely I'm taking my breakfast early morning. 8 is the limit. Like 8 बजे तक मेरा breakfast हो जाता है. ओके. So after that, doing some puja and all, taking bath and everything. By 11ish, I'm done with the day. As in like जो मेरा घर का काम है या taking all the responsibilities as being a mother, as being a wife. Definitely my priorities are my daughter and my husband. And after finishing all the tasks, which is my priority, then I take my walk. So by 11 and 12, I'm free. So my daughter comes by 1:30 and then I go for meetings and all. I'm working. Then I come back by 5, 6 o'clock. I again take my dinner. 6 o'clock in the evening? Yes. 6 बजे के पहले मैं इसका कोई कॉन्सेप्ट है कि आपने डिफाइन किए हैं कुछ? सो जो मैंने फील किया है, मुझे ऐसा लगता है कि 6 बजे खाना खाने के बाद मुझे अच्छा लगता है. ओके. And- इट इज़ योर इंडिविजुअल चॉइस. हाँ, एंड ऑल्सो मुझे जो खुद फील होता है, जो मुझे कंफर्टेबल फील करा रहा है, और सी बीइंग फ्रॉम अ इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग, आई टेल यू. तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरी हेल्दी हैबिट्स कंसीडर होने लगी हैं अपने आप में, और वो Got मुझे काफ़ी बेनिफिशियल भी रही हैं ठीक है, ठीक है. as a health aspect. So that way. By 8:30 or 9, I switch off the light. So 9 is the red alert. Now no one is gonna come to my home. So that image I really. So there are times when people are asking, आज हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो चलेगा क्या आपके घर आ जाए? So I'm like, at what time? 9:30. I'm like, okay. So now the Being image. in the city like Mumbai at 9 o'clock, I you are know. sleeping. मतलब ये अक्षय कुमार को भी चैलेंज करने लायक काम हो गया है. No, तो he must be sleeping at 9. 10. I believe. No, he oh is yeah. at 10. He is waking up at 4 and he is sleeping at 10. Oh God. So you are challenging him as well. Okay. No, I'm Who is not the top of the challenging country. anyone. No, but it's And good. if I talk about as your profession, what is the
right age group you want to suggest that at least जो जिनको भी faith हो या जिनको भी करना हो कि one should come for any graphological assessment, what should be the decent age you can say to the viewers? See, so it depends, like. नहीं, everything will be depending. I'm not asking that. I'm just in general. I'm just trying to say because हर किसी का एक ज़िंदगी का एक पहलू होता है, ज़िंदगी का एक स्टेज होता है. किसी का 18 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इन जनरल आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द राइट एज ब्रैकेट जहाँ पे अगर वो ग्राफोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझ ले तो वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या डिसिप्लिन तरीके से आगे लेके जा सकते हैं. व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? So 11 to 18 is the racket, I'll 11 say. to 18 में तो उसकी चलती नहीं होगी, उसके तो पेरेंट्स का चलता है उस समय, तो उसको पेरेंट्स को कन्विंस करना ज़्यादा ज़रूरी है. So that's what. आई एम सेइंग दैट एज एन इंडिविजुअल. Okay. So that way it can be like 25 से आप कर सकते हो 20. ओके, अदरवाइज यू आर सेइंग दैट 11 to 18 is a very good. मतलब योर मैसेज शुड गो टू मैक्सिमम पेरेंट्स. Please. They should understand it, and from 11 to 18 Yes. they should at least go for a graphological assessment so that they can understand what are the things is happening and how they can define or change for a better lifelong. One more thing I would like to share on Yeah, this please. platform is very important. अभी क्या हो रहा है ना? This is the time when kids has to choose this subject, Yes, right? yes. जो 9th 10th में उनको कंटिन्यू करना होंगे. सो विच आई रिसेंटली सॉ, एक केस हुआ उसमें उनके पेरेंट्स ने मुझे उनके बच्चे का मेरे पास एनालिसिस करवाया करियर से रिलेटेड. बच्चा इज़ टू गुड इन मैथ्स एंड साइंस. दे आर ऑल सेट. दे जस्ट वांट देयर किड टू टेक मैथ्स एंड साइंस. बच्चा डोंट वांट इट. पेरेंट्स आर सीइंग द रिजल्ट्स, दे आर सीइंग द नंबर्स. हमारा बच्चा मैथ्स एंड साइंस में इतना अच्छा कर रहा है, he will definitely take it. Clear है. बच्चा अंदर से खुश नहीं है, बट बच्चा is not saying them because वो रिजल्ट अच्छा दे रहा है. This is like in this age kids are doing really good. अभी they just ask me कि हमें अपने बच्चे का हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस कराना है, तो आप कर दीजिए, मुझे उसके करियर के एस्पेक्ट्स जानने हैं. तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया. I said this kid will take EVS and Eco. Maths and Science, Maths and Commerce, Science and EVS. Then EVS and Economics. And I'm saying EVS and Economics. They are surprised. They're literally surprised. उनको ऐसा लग रहा है मतलब हमारे बच्चे के तो ज़िंदगी में क्या ही हो गया ये. He's so intelligent. I'm like, yes, I know he's very intelligent. Because अभी क्या हो रहा है ना, आप उसको जो एनालाइज कर रहे हो, आप उसके मार्क्स से उसको एनालाइज कर. Yes, yes. बट उसके जो ट्रेड्स डेवलप हो चुके, आप वो एनालाइज नहीं कर रहे हो. बट व्हेन आई एम आस्किंग टू दैट किड, आपको मैथ्स पसंद है? नहीं. बिकॉज अभी का आप देख रहे हो ना, बच्चे के जो ट्रेड्स हैं वो आगे सब्जेक्ट में क्या होने वाला है उसे वो चीज़ें अभी नहीं पता है. अभी तो वो मैथ्स कर रहा है, अच्छे नंबर्स ला रहा है, साइंस अच्छा कर रहा है, 20 आउट ऑफ 20 ला रहा है. पीपल आर फीलिंग कि मेरे बच्चे को तो मैं जानती हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरा बच्चा कौन जानेगा. Yes, true. ट्रस्ट मी, इट्स अ मिथ. हम हमारे बच्चे को नहीं जानते हैं. हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को ज़्यादा जानते हैं. तो वो 0 to 7 और 7 to 14 वाला फंडा का क्या होगा? मतलब जब वो 0 to 7 में फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप कर रहा है अपने माँ के साथ रह के, यू आर generating a connection, you're creating a Correct. connection. हाँ. And 7 to 14 you're being in the fatherhood and taking that feminine to masculine characteristics. So that time you are giving the most of it as a mother or father characteristics हाँ. till the 14 years of age. So that is the reason they are claiming it, that they know So it better. are you really giving that? Again, there is a question ना, are you giving this? As being a mother, आपने अपने बच्चे को 0 to 7 में वो चीज़ें दी. अच्छा सी, कभी एक छोटा बच्चा है, माँ ने, आपने देखा होगा, माँ ने यदि उसको मारा तो वो रोती है. बट फादर ने कभी उसको डांटा या मारा तो वो कभी नहीं रोता है. रेयर. आई मीन उल्टा भी होता है.
सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग ना कि एनर्जी कैसे मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन हो यस, रही क्योंकि है. ऐसा लगता है बच्चों को कि माँ तो रोज़ मारते हैं, लेकिन पिताजी ने अगर 15 दिन में एक बार डांट दिया तो तुरंत तो बुरा लग जाता है। ये So तो कभी नहीं डांटते, आज आज इन्होंने क्यों डांट दिया। डांटा, बट यू नो दैट इज ओनली गोइंग टू इम्पैक्ट. ओके, 7 to 14 में आप अपने बच्चे से जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, दैट इज ओनली गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर किड. 0 to 7 में मम्मा को टाइम दिया, अभी 7 to 14 डैडी का टाइम है. दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट कि जब किड्स की असेसमेंट होता है, सो देयर यू कैन Yeah. एक्चुअली अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट ऑल्सो दे कैन Career परस्यू। counseling. कैरियर काउंसलिंग के Yes. लिए भी मदद हो सकता है ये। यस, ग्रिफोलॉजी में जो मैं आपको बता रही हूँ, किड्स के ऊपर हम काम करते हैं. तो यहाँ पे क्या सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ों ही आप बता सकते हो कि कुछ Overall. डिटेल में और भी कुछ कर सी सकते हो? ओवरऑल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को, देयर आर टाइम्स व्हेन किड्स पेरेंट्स आर सेइंग कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, कम पढ़ता है लेकिन जब पढ़ता है तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, पर वो उसको कंसिस्टेंसी में नहीं रख पा रहा है. यस, होता है। वाई? आप बोल रहे हो घर से ही नहीं निकलता है, हम्म, क्यों? सुनता ही नहीं है. किड्स आर दूसरों से बात ही नहीं कर पाता है। हाँ, मिंगल नहीं होता, इसके तो फ्रेंड्स ही नहीं है, हाँ, पूरे दिन टीवी और मोबाइल में लगा रहता है. हम्म, So all these things can be assessed and analyzed through and graphology. also you can Do a therapy to improve it. yeah, definitely. एंड कैन यू assess कि बच्चा ओवरसीज में जाके पढ़ाई करेगा, जाएगा, ये सब भी क्या आप एनालाइज कर पाते हो? हाँ, एनालाइज हो सकता है, बट एज फॉर बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट डिपेंड करता है उसके उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसे है. फर्स्ट वी हैव टू चेक विद दैट ओके, बाय द हैंड राइटिंग ओनली. वी हैव टू चेक कि उसके अपने माँ और पिता के साथ रिलेशन कैसे है. ऑन दैट बेसिस वी कैन एडवाइज कि आप बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हो या नहीं. नाउ ये सारे की अगर मैं समराइज करूं तो ये ग्राफोलॉजी के हर चीज़ में इसका रोल है, जो मुझे समझ में आया कि एवरीथिंग कैन बी को रिलेटेड एंड रिलेटेड थ्रू ग्राफोलॉजी एंड यू कैन मेक सर्टेन थिंग्स स्टैंडर्ड थ्रू इट. अब मैं अगर ये आपसे बस इसको समराइज करना चाहूँ तो एक बच्चे की ज़िंदगी को भी आप इम्पैक्ट दे सकते हो, एक प्रोफेशनल की ज़िंदगी को भी आप इम्पैक्ट कर सकते हो, हेल्थ को भी आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो थ्रू योर सर्विसेज. सो अगर आप ग्राफोलॉजी को एज ए किसी एक चीज़ का अगर स्पेशलिटी माने तो सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है ग्राफोलॉजी के? आप मुझे क्या बोल रहे हैं ये, मतलब मैं इसका आंसर कैसे दूँ? आपको आपकी दो आंखों में से एक आंख कौन सी प्यारी है? You mean to So say कि for graphology के me, all the yes, things are yes, equally important yes. for graphology and equally everything can be assessed and with that perfection you mean to say. मेरा पूछने का मतलब ये था कि किस चीज़ में इसकी परफेक्शन का जो परसेंटेज है वो बेहतर होता है. ओवरऑल लाइक सबका ही इक्वल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये कम है या ये ज़्यादा है. सो फॉर मी इट्स माई बेबी, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. सो आई Yes, I कैन got your नॉट बी दैट वे कि इससे पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इससे हेल्थ में अच्छा रिजल्ट मिलेगा. नो, एवरीथिंग यू विल गेट. अगेन द टू थिंग्स, फेथ एंड कंसिस्टेंसी. Yes, that is the backbone. हाँ, because there are times when people are coming to me, they are doing the analysis, taking the therapies, लिखते नहीं है. I feel bad. The reason you literally earn money, it's an hard-earned money, you know, you giving it to me. For you, it is money, but for me, it's an energy in which you giving me for my work, right? So I also want you to use the energy because you earned it ना, आपने मुझे दिया. So it should not waste. आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और उस एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हो. लिखो प्लीज, राइट. Thank you very, very much for coming to our studio and have this podcast. It wasn't so insightful for me even to having this podcast with you. I cannot say you and I cannot explain you that what other things got clear from my mind when I was talking to you, because it was absolutely fantastic that the kind of discussion we had.
Thank you so much for calling me over. Even I'm very grateful for such wonderful questions, and I'm very glad इस पॉडकास्ट के जरिए मैं लोगों को सही Yes, ग्राफेनोलॉजी yes, के yes. बारे में बता सकूं और Yes. उनकी किसी भी तरीके से जैसे भी उनकी हेल्प हो सके, आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प देम. Thank you very much for coming to our Thank you show. so Thanks a much. lot. Thank you so much. So this was the podcast with Monica Budolia, who is a graphologist. I hope this podcast has given you a lot of insights about your handwriting, your signature, and how your handwriting and signature can define what are the things. So if you like this podcast, please subscribe this channel and also share this channel too. And you can also subscribe our TSBP News, where we cover business news Monday to Friday. So thank you very much for watching the podcast till the end, and signing it off.